وہ شخص جو اسلام کے خاتمے کے لیے نکلا تھا، مگر جب واپس آیا تو اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن چکا تھا۔ جس کی تلوار سے مسلمان ڈرتے تھے، اس کی تلوار اب اسلام کی حفاظت کرنے لگی۔ وہی عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے نکلا تھا، جب ایمان لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا، یا رسول اللہ، آج سے عمر کا جسم، دل اور تلوار سب آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اسلام کی تاریخ کا وہ دن تھا جب اسلام نے کھل کر سانس لینا شروع کی۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت عمر کا قبول اسلام کیسا ہوا، کیوں ہوا اور اس نے تاریخ کا رخ کیسے بدل دیا، اور ابو جہل کا اس پر کیا ریئیکشن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامنوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ حضرت سید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ حضرت لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم دے لو تو پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا صد و کوب سے دریغ نہ کرتے۔ اسی طرح حضرت سنیرہ حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھی، اسی وجہ سے حضرت عمر کو جی کھول کر ستاتے۔ جب ان کے چچا زاد بھائی سعد بن زید اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا جس کو چڑھ جاتا تو اترتا نہ تھا۔ چونکہ قریش کے سربراہ میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اسی لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلے میں استعمال کیا، جس کی وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ سے دعا کی، خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، مگر یہ دولت تو قدرت نے حضرت عمر کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی۔ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں، یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا دیے، لیکن آواز ان کی کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم مرتد ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست گریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لے لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی، عمر، جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔
इसे देखकर और भी रकत हो गए। फरमाया, तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान के इजाज़ सामने लाकर रख दिए। उठाकर देखा तो ये सूरत थी, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब खुदा की तस्बीह पढ़ते हैं, वो गालिब और हिकमत वाला है। एक एक लफ्ज़ पर इनका दिल मरूब होता जाता था, यहाँ तक कि जब इस आयत पर पहुँचे, खुदा और इसके रसूलों पर ईमान लाओ, तो बेख्तियार पुकार उठे थे कि मैं गवाही देता हूँ कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम के मकान पर, जो कि कोह सफा के नीचे वाक़या है, पनाह गज़ी थे। हज़रत उमर ने आस्ताने मुबारक पर पहुँचकर दस्तक दी, जो कि शमशेर बकफ थे। सहाबा किराम को तरद्दुद हुआ, लेकिन हज़रत हमज़ा ने कहा, आने दो, मुखलसाना आया है तो बेहतर है, वरना इसकी तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। हज़रत उमर ने अंदर कदम रखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके बढ़े। उनका दामन पकड़कर फरमाया, क्यों उमर, किस इरादे से आए हो? नबुवत की पुरजलाल आवाज़ ने इनको कपकपा दिया। नहायत खुजू के साथ अर्ज़ किया, ईमान लाने के लिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाख्ता अल्लाह अकबर का नारा इस जोर से मारा कि तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुसलमान हो जाने से इस्लाम की तारीख में एक नया दौर शुरू हो गया। उस वक़्त 40 या इससे कुछ कम व पेश आदमी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, लेकिन वो नहायत बेबसी और मजबूरी के आलम में थे। अलानिया फ़राइज़ मजहबी अदा करना तो दरकिनार, अपने को मुसलमान ज़ाहिर करना भी खतरे से खाली न था, और काबा में नमाज पढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन था। हज़रत उमर के इस्लाम लाने से दफ़अतन हालत बदल गई। इन्होंने अलानिया अपने इस्लाम का इजहार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुशरिकीन को जमा करके बाआवाज़ बुलंद अपने ईमान का ऐलान किया। मुशरिकीन नहायत बरफ़रोख्ता हुए, लेकिन आस बिन वाइल ने, जो रिश्ते में हज़रत उमर के मामू थे, इनको अपनी पनाह में ले लिया। हज़रत उमर कबूल इस्लाम से पहले अपनी आंखों से मुसलमान की मज़लूमियत का तमाशा देखते थे, इसलिए शौक़े मसाबात ने इससे पसंद न किया कि वो इस्लाम की नेमत से मतमत्ता होने के बाद आस बिन वाइल की हमायत के सहारे इसके नताइज में महफूज रहे। इसलिए इन्होंने पनाह कबूल करने से इनकार कर दिया और बराबर सबात और इस्तकामत के साथ मुशरिकीन का मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों की जमात के साथ बराबर जाकर काबा में नमाज अदा की। ये पहला मौका था कि हक बातिल के मुकाबले में सर बुलंद हुआ, और हज़रत उमर को इस सिले में दरबारी नबूवत से फारूक का लक़ब मरहमत हुआ। इस तरह गोया इन्होंने इस्लाम लाने के बाद तकरीबन 8 बरस तक कुरैश के मुसालिम बर्दाश्त किए। जब मुसलमानों को मदीना की जानब हिजरत की इजाज़त मिली तो हज़रत उमर भी इस सफ़र के लिए आमादा हुए। हिजरत करने वालों को कुरैश मक्का की सख्त मज़ाहमत का मुकाबला करना पड़ा। बाज़ अहादीस में है, जब अबू जहल को हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो वो आग बगोला हो गया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू जहल के घर तशरीफ़ ले गए। अबू जहल ने आपको देखकर कहा, ए बांजे, कैसे आना हुआ? आपने फरमाया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर अब तुमने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत कहा या किया तो मुझसे बुरा कुछ ना होगा। अबू जहल ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की बात सुनी तो गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा, तुम और तुम्हारी इत्तला दोनों जलील हो। हदीस में यह भी मरवी है कि हज़रत उमर के कबूल इस्लाम के बाद खाना काबा में कबूल इस्लाम का ऐलान फरमाया गया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल करने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब हमारा दीन पर हक है और मुशरिकीन बातिल हैं, तो फिर हम दीन को पोशीदा रखकर क्यों इबादत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए। रब काबा की कसम, जिसने आपको हक के साथ माबूस फरमाया है, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं कुफरिया मजालिस में भी अलानिया शिरकत करता था। अब मैं दीन इस्लाम की महाफिल को भी खूब चर्चा करूंगा और देखूंगा किसमें इतनी जुर्रत है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की तरफ गंदी नज़रों से देख सके। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक खाना काबा तशरीफ़ ले गए और मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करते हुए फरमाया, जो मुझे जानता है इससे खूब मालूम है
اور जो मुझे नहीं जानता इससे मालूम होना चाहिए कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत इख्तियार कर ली है। मैं तुम्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की दावत देता हूँ। अगर तुमने इस दावत को कबूल करने में सुस्ती दिखाई तो चलो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाना काबा का तवाफ किया और बुलंद आवाज से कलमा तैयबा जारी रखा। हजरत उमर के कबूल इस्लाम के बाद तबलीग इस्लाम में आसानी हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम खुलकर सामने आ गया और इसकी अलानिया दावत दी जाने लगी। हम खाना काबा के गिर्द हल्का बनाकर बैठना शुरू हो गए और खाना काबा का तवाफ करने लगे और ज्यादती करने वालों से सख्ती से पेश आना शुरू हो गए। हजरत सैयदना उमर फारूक के कबूल इस्लाम के बाद एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज की अदायगी के लिए खाना काबा तशरीफ ले गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बाएं जानब हजरत हमजा, सामने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा और सबसे आगे हजरत उमर फारूक थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा कराम के पहरे में खाना काबा पहुंचे और नमाज ज़ोहर अदा की। हजरत सैयदना उमर फारूक के कबूल इस्लाम से और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाना काबा में नमाज की अदायगी को देखकर मुशरिकीन मक्का आग बगोला हो गए, मगर हजरत सैयदना हमजा और सैयदना उमर फारूक के रौब दबदबे की वजह से वो कुछ ना कर सके। अहादीस में मरवी है कि हजरत उमर वाहिद वो सहाबा हैं जिन्होंने अलानिया हिजरत फरमाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से जब मदीना मुनव्वरा की जानब हिजरत की इजाज़त दी गई, हजरत सैयदना उमर फारूक वह शख्स थे जिन्होंने अलानिया हिजरत की। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा से मरवी है, फरमाते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं सिवाय हजरत सैयदना उमर फारूक के जिसने अलानिया हिजरत की हो। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत से पहले खाना काबा में तशरीफ ले गए और तलवार नियाम से निकाल ली, फिर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया और मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज अदा की। फिर सरदाराने कुरैश के पास गए और उनको मुखातब करते हुए फरमाया, तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी शक्ल खराब करना चाहे? तुम में से कोई है जो अपनी माँ को बे औलाद करना चाहे? तुम में से कोई है जो अपनी औलाद को यतीम करना चाहे? तुम में से कोई है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहे? अगर किसी का इरादा है तो वो मेरे मुकाबले में आए। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि कुरैश के तमाम सरदार हजरत सैयदना उमर फारूक की तकरीर सुनकर घबरा गए और किसी ने इतनी जुर्रत ना हुई कि वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता रोके। में सच्चाई की रोशनी दाखिल हुई तो वही उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म बन गए, जिनका नाम आज भी अदल, बहादुरी और दीन हक की सरबुलंदी के लिए जाना जाता है। इनका कबूल इस्लाम एक यादगार लम्हा है जो हमें यह सबक देता है कि अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत अता फरमा दे और हक को तस्लीम करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है।